નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો નિર્માણ ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆત હોટ ટોપિક અને હું છું આપની સાથે કશિશ. દર્શક મિત્રો, દર વર્ષે 10મી જાન્યુઆરીના રોજ ઉજવાય છે વિશ્વ હિન્દી દિવસ. વર્લ્ડ વાઇડ હિન્દીને એટલી ફેમ જે મળી છે, હિન્દીનું મહત્ત્વ વર્લ્ડ વાઇડ દરેક દેશમાં દરેક નાગરિકોને ખબર પડે, હિન્દીનું મહત્ત્વ સમજાય, હિન્દીનું મહત્ત્વ સમજીને જે આપણી રાષ્ટ્રીય ભાષા હિન્દી છે તેને આપણા દેશમાં પણ એટલું જ તેનો વપરાશ થાય તેના માટે ખાસ આ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. મહત્ત્વની વાત એ છે કે 1975માં હિન્દી દિવસની જે કોન્ફરન્સ યોજાઈ હતી નાગપુરમાં, અને ત્યારબાદ વર્ષ 2006થી વર્લ્ડ વાઇડ જ્યારે આ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. એક વાત એ છે કે આપણે જે આજકાલની જનરેશનમાં લોકોને જોઈ રહ્યા છે, હિન્દી સાથે ઇંગ્લિશ મિક્સ કરી દે, પોતાની માતૃભાષા મિક્સ કરી દે. આ વર્ષની જે વિશ્વ હિન્દી દિવસની થીમ છે તે એવું કંઈક છે કે હિન્દીને પબ્લિક ઓપિનિયનમાં તેનો ભાગ મળે, સાથે સાથે આપણી માતૃભાષાને પણ ત્યાંને ત્યાં જ રાખીને, માતૃભાષાને આપણે ક્યાંય તેનો વપરાશ ઓછો કરવાનો છે, તેનો ઓછી બોલવાનું છે એવું નહીં, પરંતુ સાથે સાથે હિન્દીને પણ આપણે એ જ જગ્યાએ રાખીએ, તેને પબ્લિક ઓપિનિયનમાં એટલો જ ભાગ મળે. કારણ કે એક રાષ્ટ્રીય ભાષા તરીકે જ્યારે હિન્દી આપણી સમક્ષ છે ત્યારે બિલકુલથી તેનો આપણે મહત્ત્વ ન ભૂલવું જોઈએ અને તેને અંડર એસ્ટિમેટ તો બિલકુલથી ન કરવી જોઈએ. કારણ કે બ્રિટિશ રાજ બાદ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ અંગ્રેજીનો એટલો બધો વપરાશ થઈ રહ્યો છે. સાથે સાથે આજની જનરેશન તો ઇંગ્લિશ પાછળ એટલી જે ઘેલછા તમને દેખાઈ રહી છે કે હિન્દીને ક્યાંક ભૂલી જ ગયા છે. તો ખાસ કરીને આજે આપણે આ વિશ્વ હિન્દી દિવસ ઉપર ચર્ચા કરવાના છે, હિન્દીના મહત્ત્વ પર ચર્ચા કરવાના છે, કેટલું મહત્ત્વ છે, કેવી રીતના હિન્દીનો જન્મ થયો હતો, સાથે ખાસ કરીને હિન્દીના મહત્ત્વને કેવી રીતના જાળવી રાખવું કે આપણી આગામી જનરેશન, આગામી પેઢી પણ હિન્દીના મહત્ત્વને એટલું જ સારી રીતે સમજે તે માટે ખાસ ચર્ચા કરીશું. ચર્ચા કરવા માટે પેનલ પર આપણી સાથે ગેસ્ટ જોડાઈ ગયા છે પ્રોફેસર અનેકાંત જૈન, કે જેઓ શ્રી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી રાષ્ટ્રીય સંસ્કૃત વિશ્વવિદ્યાલય ન્યૂ દિલ્હીના જૈન દર્શન પ્રોફેસર છે, અને ડૉક્ટર ઘેલજી ભાટિયા કે જેઓ ગુજરાત વિદ્યાપીઠના આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર હિન્દી વિભાગના છે. બંને મહેમાનોનું कार्यक्रम में स्वागत. प्रोफेसर अनेकांत, सबसे पहले आपको पूछना चाहूंगी कि हिंदी का जन्म कैसे हुआ? शुरू से हम शुरू करते हैं. देखिए, हिंदी भाषा सबसे पहले हमें पद्य के रूप में मिलती थी. आप देखेंगे प्राचीन काल में वो कविताओं में, अगर हम सूरदास जी के सूरावली पढ़ते हैं, कबीरदास जी के दोहे पढ़ते हैं, ये हिंदी गद्य का विकास बाद में हुआ भारतेंदु हरिश्चंद्र के काल से. जब हम हिंदी गद्य के रूप में देखते हैं, आज हम लोग जो लिखते हैं वो सब विकसित हिंदी है. पहले ये पद्य के रूप में विकसित थी. और अगर आप उसका और प्राचीन इतिहास देखना चाहेंगे तो सबसे पहले हमारे देश में जन भाषा के रूप में प्राकृत भाषा चलती थी, और प्राकृत भाषा के बाद अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ, अपभ्रंश भाषा आई, और अपभ्रंश से ही विकसित रूप में हमें हिंदी प्राप्त हुई है. तो जो हमारी अपभ्रंश भाषा थी उसमें बहुत साहित्य लिखा गया 13वीं 14वीं शताब्दी में. उसके बाद विकसित होते होते हमें हिंदी के रूप में आज हमको प्राप्त हुई है, जो आज पूरे विश्व में तो लगभग 52 करोड़ लोग हिंदी को बोलते हैं. બિલકુલ. ડૉક્ટર ઘેલજી, જ્યારે વિશ્વ હિન્દી દિવસની ઉજવણી થઈ રહી છે, વર્લ્ડ વાઇડ હિન્દીના મહત્ત્વને લોકો સમજે તે માટે ખાસ આ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે, કેવી રીતના જોઈ રહ્યા છો આને? जी, सवाल मेरे मन में ये, जब मैंने हिंदी विषय के साथ अध्ययन शुरू किया उस समय मुझे लगा कि हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं. तो हिंदी है ना, वो सबसे पहले उन्होंने अपनी जो भारतीय अपनी जो भाषाएं थी उन भाषाओं के साथ उन्होंने मैत्री करी, और सारी भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करके वो भारत की एक राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में ये बराबर वो एक परिपक्व हो गई. और इनका जब जन्म हुआ उस समय मराठी कवि नामदेव की एक काव्य पंक्ति में यहाँ शेयर करना चाहता हूँ, कि जिसमें खड़ी बोली हिंदी का शुद्ध रूप देखने को मिलता है कि पांडे तुम्हारी गायत्री लोकों का खेत खाती हैं, लेकर टेंगा टेंगरी लागत लागत जाती हैं. हिंदी का जब 10वीं शताब्दी में शोरसेनी अपभ्रंश से जन्म हुआ, और तब से लेकर आज तक हिंदी अनेक अनेक संघर्षों का सामना करती करती, जैसे लेकर टेंगा टेंगरी, सामना और संघर्ष करती करती आज विश्व पर उन्होंने अपनी फलांग भरी. मुझे यहाँ ये कहना है कि भारत का प्रतिनिधित्व तो हिंदी करती है, लेकिन विश्व में भारतीयता का प्रतिनिधित्व के रूप में आज हिंदी पहुंची है. क्योंकि भारतीयता और भारत क्या है, तो भारतीय व्यवस्था, भारतीय संस्कृति, कबीर, सूरदास, मीराबाई, नानक, रैदास, अरे अनेक ऐसे जो भारतीय विद्वान हैं कि जिन्होंने
हमारी भारतीय व्यवस्था के संदर्भ में गद्य और पद्य में जो कुछ लिखा है वो सारा आज विश्व में जा रहा है, और विश्व में भारतीय संस्कृति की जो पहचान वो भाषा के जरिए गई है। अगर भाषा लुप्त हो गई तो समझिए कि हमारी जो व्यवस्था है ये भी दूसरी जगह नहीं पहुंचेगी और लुप्त हो जाएगी, क्योंकि भाषा जिंदा रखने का अधिकार और भाषा जिंदा रखने का कर्म और फर्ज ये हम सबका है। जब तक हम भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तो भाषा एक दिवस लुप्त हो जाएगी। तो हमें अगर अपनी भारतीयता को, अपने स्वयं जो अपना अस्तित्व है उन अस्तित्व को बनाए रखना है, आने वाली पीढ़ी को भी अपने अस्तित्व के प्रति बराबर जागरूक रखना है, तो हिंदी भाषा को ये बोलना और उनका प्रचार करना ये हमारा सबका परम कर्तव्य है, क्योंकि हिंदी में ही हमारा अस्तित्व है, हिंदी में ही हम भारतीय हैं। तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, और फिर मौका मिलेगा तो मैं फिर आगे कहूँ। बिल्कुल Okay. बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर अनिकांत, जैसे डॉक्टर खिलजी द्वारा जो हमें जो हिंदी का महत्व और ख़ास करके जो संघर्ष के बारे में बताया गया है, जो उन्होंने कहा कि विश्व भर में जैसे हिंदी ने एक संघर्ष किया है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हिंदी एक बड़ी उदारवादी भाषा है, और जैसा आपने कहा, बहुत अच्छी बात की कि सभी हमारी जो लोकल भाषाएं हैं, हमारी जितनी भी भाषाएं प्रदेशों में चलती थी, उन सबको आत्मसात करते हुए वो आगे बढ़ती चली गई। और आज भी हम देखें, आप लोग हिंग्लिश शब्द का प्रयोग करते हैं कि हम लोग हिंदी और इंग्लिश मिला करके बोलते हैं, लेकिन ये हिंदी की विशेषता है कि वो हमारे अंग्रेजी के शब्दों को भी आत्मसात कर लेती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, हम लोग बोलते हैं जो है ट्रेन स्टेशनों पर रुकती है। अब स्टेशन शब्द अंग्रेजी का है, लेकिन उसमें व्याकरण हिंदी की लगा दी, स्टेशन ना बोल के बोलते स्टेशनों पर रुकती है। इसका मतलब हिंदी ने अंग्रेजी के शब्दों को आत्मसात कर लिया, और जो भी भाषा जितनी फ्लेक्सिबल होती है वो उसी तरीके से चारों तरफ फैलती चली जाती है, उसका विकास होता जाता है। और जो भाषाएं स्वयं में परिवर्तन नहीं करती हैं वो भाषाएं फिर रूढ़ हो जाती हैं, बहुत कम लोग उसको जानते समझते। तो हिंदी ने एक ये मुकाम तो हमको दिया है। अगर वो विदेशों में भी हमारे, जैसे आपने बताया 1975 में 10 जनवरी को एक नागपुर में अधिवेशन हुआ था, उसी समय संकल्प किया गया कि विश्व हिंदी दिवस हमको मनाना चाहिए। लेकिन वो सामाजिक स्तर पर साहित्यकार विश्व दिवस मनाते थे, लेकिन आधिकारिक रूप पर हमारे यूपीए की जब सरकार आई और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उन्होंने 10 जनवरी 2006 को आधिकारिक रूप से विश्व हिंदी दिवस की घोषणा की, और नॉर्वे में जो दूतावास है वहां सबसे पहले विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। और अभी विश्व हिंदी दिवस का जो कॉन्सेप्ट है वो इस बात पर आधारित है, क्योंकि एक हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी 14 सितंबर को मनाते हैं, लेकिन विश्व हिंदी दिवस मनाने का जो उद्देश्य है वो ये कि विदेशों में जो दूतावास हैं हमारे, वहां पर उस हिंदी दिवस को विशेष रूप से मनाया जाता है। और आपको मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूं कि लगभग पूरे विश्व में 100 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां हिंदी पढ़ाई जाती है, और 30 से अधिक देशों में कम से कम 30 देश हैं जो हिंदी को पढ़ाते हैं। अकेला अमेरिका एक ऐसा देश है जो जिसमें 150 एजुकेशन सेंटर है जहां पर हिंदी की पढ़ाई की जाती है। तो आप देखिए, जब पूरा विश्व हिंदी को इतने सम्मानित ढंग से देख रहा है और हिंदी का दबदबा धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, लोग हिंदी के महत्व को स्वीकार कर रहे हैं, तो अभी अगर भारत में किसी को संकोच होता है हिंदी बोलने में, तो मुझे आश्चर्य होता है कि आप हिंदी बोलने में संकोच करते हैं, जबकि पूरा विश्व उसके महत्व को स्वीकार कर रहा है। क्योंकि हिंदी की जो प्रकृति है वो इतनी वैज्ञानिक रूप से तैयार हुई है, क्योंकि उसमें संस्कृत का भी प्रभाव है और प्राकृत का भी प्रभाव है, वहां से विकसित होकर के आई है। तो हिंदी एक समृद्ध भाषा है, और आप चाहें तो हिंदी में सारे कार्य कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये कहते हुए भी बहुत दुख हो रहा है कि भारत में आज भी अंग्रेजी को एक आधिकारिक भाषा के रूप में बोला जाता है। जो ऑफिसर्स हैं, जो जो बहुत अच्छे बोले इंटेलेक्ट लोग हैं, वो इंग्लिश ही बोलते हैं, हिंदी जानते नहीं है। और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये हुआ कि हमने इंग्लिश मीडियम स्कूलों को हमारे यहाँ प्राथमिकता ज्यादा दी, और हम अपने बच्चों को भी इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ाते हैं। तो आज हमारे बच्चे, अगर हम उनको 65, 66, 55 बोलते हैं तो वो समझ ही नहीं पाते कौन से डिजिट बोल रहे हैं। तो उनको हमको बताना पड़ता है 55 माने 55 होता है। तो ये किसकी गलती है? क्योंकि हमने अपने एजुकेशन सिस्टम में इस चीज को कभी प्राथमिकता नहीं दी। और मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, वर्तमान में हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें हमारी भाषाओं को महत्व दिया गया है, और उन्होंने कहा हम अपनी जो हमारी पारंपरिक भाषाएं उसमें हम ज्ञान देंगे।
तो हमारे बच्चे यदि हमारी डिजिट नहीं समझेंगे, हमारी संख्याओं को नहीं पढ़ सकते, हमारे यहाँ के गणित को नहीं समझ सकते, हमारी प्राचीन संस्कृति को नहीं समझ सकते, तो हम कहाँ जाएंगे। और हर देश ये काम करता है। आप जापान में चले जाइए, कहीं आपको अंग्रेजी में साइन बोर्ड नहीं मिलेंगे, वो अपनी जापानीज भाषा में ही साइन बोर्ड लेते हैं। आपको समझना है, नहीं समझना मत समझ, लेकिन उनका ये है कि हम अपनी जापानीज भाषा में ही सारा काम करें, और वो बहुत अच्छे से उन्नति कर रहे हैं। तो ये तो कहना ही बेकार है कि अगर हम कहें कि हम अंग्रेजी के बिना उन्नति नहीं कर सकते, तो ये एक हमारी बड़ी भ्रामक स्थिति है। हम चाहें तो अपनी हिंदी को और अधिक समृद्ध बना सकते हैं। तो हिंदी के अंदर वो प्रकृति, हिंदी की प्रकृति में वो विशेषता है, और वो धीरे धीरे निश्चित रूप से आगे बढ़ती चली जा रही। मैं मानता हूं, देखिए हमारे फिल्मी जगत ने हिंदी को बहुत आगे बढ़ाया। मैं कभी विदेश में जाता हूं तो वहां के जो हमारे कई मित्र हैं जो हिंदी नहीं जानते लेकिन हिंदी के गाने गाते हैं, वो कहते हैं हमें आपके यहाँ के गाने पसंद है। तो मैं पूछता हूँ आपको उसका मीनिंग मालूम है? तो कहते हैं नहीं, मीनिंग नहीं मालूम, लेकिन आपके हिंदी गाने अच्छे लगते हैं, और वो गाते भी हैं, उनको शब्द याद हैं उसके। तो हिंदी, मीडिया ने हिंदी को बहुत आगे बढ़ाया, और हमारे जो न्यूज चैनल्स हैं, हमारे जो सीरियल्स हैं, वो विदेशों में देखे जाते हैं। हमारे यहाँ की फिल्में विदेशों में देखी जाती, लोग हिंदी सीखते हैं उसको देखने के लिए। तो मीडिया ने बहुत अधिक हमारे यहाँ प्रचार प्रसार किया है। और मैं आपको एक बात और बताऊं, अभी कुछ 10-20 साल पहले तक हमको अगर किसी को ईमेल करना होता था तो हमको मजबूरी में इंग्लिश में लिखना पड़ता था, क्योंकि हम कंप्यूटर पे टाइप ही नहीं कर सकते थे, ना हमारे पास कोई ऐसा फॉन्ट था कि हम यूजर फ्रेंडली हो और लोग लिख सकें। लेकिन अब जैसे गूगल हिंदी इनपुट ने बिल्कुल क्रांति ला दी है, और हम इंग्लिश में लिखकर हिंदी का टाइपिंग कर सकते हैं, अंग्रेजी कीबोर्ड पर भी, इंग्लिश कीबोर्ड। और वो हमारे सोशल मीडिया हो, चाहे हमारा न्यूज चैनल्स हो, चाहे हमारे प्रचार प्रसार, कहीं ईमेल लिखना है, कोई आर्टिकल लिखना है, तो अब हम बड़े फ्रेंडली हिंदी में आर्टिकल्स लिखते हैं और हिंदी में संवाद करते हैं। तो अभी हिंदी, अगर आप सोशल मीडिया के स्टैंडर्ड पे भी देखेंगे तो हिंदी को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस मिल रहा है। अब इंग्लिश में मैसेज आपको कम आएंगे, लेकिन हिंदी, गुजराती, बंगाली, ये जो हमारी लोकल लैंग्वेज है, इनमें ज्यादा मैसेज सर्कुलेट होते हैं, क्योंकि लोगों के हृदय को छूने वाली मातृभाषाएं हैं। और मैं मानता हूं अगर हिंदी ने हमको ये प्रतिष्ठा दिलाई है। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, आजकल हम एजुकेशन सिस्टम में वैल्यू एजुकेशन की बात करते हैं कि हमको वैल्यू एजुकेशन जरूर देना चाहिए, क्योंकि लोग बड़े यांत्रिक होते जा रहे हैं। अगर आप हिंदी साहित्य को बहुत अच्छे से पढ़ा रहे होते, या हिंदी साहित्य भी पढ़ रहे, तो वैल्यू एजुकेशन अलग से देने की आवश्यकता नहीं। अगर आप कबीर को पढ़ते हैं, सूर को पढ़ते हैं, कविवर बनारसी दास जी को पढ़ते हैं, दयानंद राय जी को पढ़ते हैं, तो उनके साहित्य में वो सारे जीवन मूल्य भरे हुए हैं जो हम विद्यार्थियों को देना चाहते हैं। और हम लोगों ने अलग से कोई वैल्यू एजुकेशन सीखा नहीं, हम तो हिंदी साहित्य से ही सारी वैल्यूज, संस्कृत साहित्य से सारी वैल्यूज सीख जाते थे हम अपने जीवन के लिए। तो हिंदी को भी जो हमारे प्राथमिक स्तर पर बड़ी गंभीरता के साथ पढ़ाना चाहिए, बच्चों को उसका महत्व बतलाना चाहिए, क्योंकि आपको भविष्य में भी आपको एक ग्लोबल विलेज की तैयारी हो रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर। आप देखिए मल्टीनेशनल कंपनी क्या कह रही है, आप सिर्फ इंग्लिश जानेंगे तो हमारे काम के नहीं है, क्योंकि हमको भारत के अंदर काम करना है और हमको लोकल मार्केट्स देखने हैं। तो अगर आप वहां की लोकल लैंग्वेज नहीं जानेंगे तो आप हमारे किसी काम के नहीं। तो लोगों को हिंदी और लोकल लैंग्वेज सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको इनके अंदर काम करना है। तो हिंदी तो ये बाजारवाद हिंदी का विकास करेगा, वो कर रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि जब तक हम हिंदी में एडवर्टाइजमेंट नहीं देंगे तो हमारे जो उपभोक्ता है उन तक हमारी बातें नहीं पहुंच सकती। तो उपभोक्तावाद भी हिंदी को बढ़ावा दे रहा है, हमारे मीडिया भी हिंदी को बढ़ावा दे रहा है। तो धीरे धीरे मैं मानता हूं हिंदी का भविष्य बहुत उज्जवल है। और आपने इतनी अच्छी चर्चा रखी है, तो हमारी नई पीढ़ी भी इस चीज को सीखेगी कि हिंदी किस तरीके से आगे बढ़ सकती है, और हमको हिंदी बोलने में कभी संकोच का अनुभव नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, नई पीढ़ी को ये सीखना बहुत ही आवश्यक अभी दिख रहा है, क्योंकि जो संकोच हम हमारे देशवासियों में देखते हैं हिंदी बोलने में, और ख़ास करके जब वो अंग्रेज़ी बोलते हैं, जब उनको नहीं आता तो वो तब भी थोड़ा शर्मसार महसूस करते हैं कि मुझे अंग्रेज़ी नहीं आता, सॉरी मैं हिंदी में बोलूँगा। तो वो सॉरी जो आता है ना, वो सॉरी नहीं आना चाहिए। ડોક્ટર હિલજી, આપને પૂછવા માંગીશ, હવે જે રીતના પ્રોફેસર અનેકાંત દ્વારા કહેવામાં આવ્યું કે આખું વિશ્વ હિન્દીને સ્વીકારે છે, આખું વિશ્વ હિન્દી પર આટલું ફોકસ કરી રહ્યું છે, વિશ્વભરમાં હિન્દી છવાયેલી છે, તેમ છતાં આપણા દેશમાં એની એટલી વેલ્યુ નથી। કહેવાય ને કે જેની પાસે છે તેની વેલ્યુ નથી ને બહાર બધાને શીખવાની ઈચ્છા થાય છે। શું કહેશો? जी, तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ एक लोकोक्ति है, मुहावरा, कि घर की मुर्गी दाल बराबर।
पर जब दूसरे लोग उनकी तारीफ करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम अपने आप को नहीं देखते, आईने के रूप में दूसरे देश को या दूसरे को पसंद करते हैं। जब दूसरा देश यहाँ आकर कहेंगे कि हिंदी में तो, हिंदी भाषा तो ये समृद्ध भाषा है, बड़ी अच्छी भाषा है, तो हम लोग मानेंगे देखो हमारी भाषा की तारीफ हो रही है। तो एक देश जरूर होगा कि विश्व के लोग हिंदी की तारीफ करेंगे और हम लोग कहेंगे देखो हमारी अपनी देश की भाषा को हम नहीं समझ रहे थे। क्योंकि कहते हैं ना कि जब धन एकत्रित होता है तो धनवान होता है। बिल्कुल, भाषा के संदर्भ में जब शब्द संपदा बढ़ती है और शब्द क्षमता बढ़ते ही वो शब्दवान बनती है, और शब्दवान बनते ही तो विश्व पर फलांग भरी है। हिंदी के शब्द भंडार देखिए इतना विस्तृत होता जा रहा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। एक दिवस ऐसा होगा कि सबको ये हिंदी के जरिए ही अपने देश की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था हिंदी के जरिए समझेंगे। जैसे ये सर ने कहा, मैं बिल्कुल इनके साथ सहमत हूं कि हम सबका ये फर्ज है, शिक्षकों का, शिक्षा का, व्यवहार का, सबका। लेकिन हिंदी को हम महत्व इसलिए देते हैं क्योंकि हिंदी है ना, वो कहीं भी आप देखिए किसी भी देश की भाषा हो तो वहां ये भाषा को माँ का या तो देश को माँ का स्थान नहीं देते। हमारे भारत में ये भाषा को माँ का दर्जा दिया गया है और एक आदरणीय दर्जा दिया गया है। पर अंग्रेजी है ना, वो व्यापार की भाषा है। और आजकल ये हमारा पूरा है जो दुनिया में सब रोजगार के अवसर ढूंढ रहे हैं, तो रोजगार के अवसर है ना वो व्यापार की भाषा अंग्रेजी से मिल रही है, इसीलिए अंग्रेजी को पसंद करते हैं। बल्कि हमारा अस्तित्व है, ये अस्तित्व अपनी भाषा से है। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मीटत न ही को सुल। कि निज भाषा के बिना हमारी उन्नति असंभव है। हमारी उन्नति हम चाहते हैं तो निज भाषा से होगी, क्योंकि हमारी जो सब, भले अंग्रेजी का कोई भी एक विद्वान, मैं भाषा से हमारा कोई मतलब विरोध नहीं है। ये गांधी जी भी हिंदी के हिमायती थे और राजभाषा के रूप में उन्होंने और उस समय के नेताओं ने और विद्वान लोगों ने खूब भाषा को ये प्यार दिया और सहयोग किया। फिर भी गांधी जी अच्छी अंग्रेजी जानते थे, तो अंग्रेजी से हमारा कोई विरोध नहीं है। पर हम लोग पागल हो गए हैं एक भाषा के पीछे, रोजगारी या तो इस भाषा के पीछे इतने पागल हो गए कि अपनी माँ को हम भूल गए। बल्कि ये नहीं कि आप देखिए अंग्रेजी जानने वाला व्यक्ति कभी इनके स्वप्न आता है तो क्या इनके अंग्रेजी में स्वप्न आता है? नहीं, अपनी मातृभाषा में स्वप्न आता है। इसका मतलब है हमारा अस्तित्व कहाँ है? हमारा अस्तित्व अपनी देश की, अपनी मातृभाषा में हमारा अस्तित्व है। और ये प्रथम चरण है और उस चरण से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हिंदी हमारा मतलब कहते हैं कि हमारी बुनियादी, ये हमारे विकास की आधार शिला है और उसको हमें कभी ये हिलने नहीं देना है और कभी हमें इसको कहते हैं कि हमेशा मजबूत सहयोग के द्वारा मजबूत इस शिला को रखना है। और एक बात ये कहना चाहता हूँ कि देखिए विश्व में भाषा पहुंची है कई माध्यमों के, साधु संतों के जरिए गई है, धार्मिक संप्रदायों के जरिए विश्व में पहुंची है, भारत में पहुंची है, जन जन तक पहुंची है। तो अपने संप्रदाय, अपना जो भी धार्मिक अपना जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य के जरिए माध्यम भाषा के रूप में हिंदी पहुंची है। अगर मैं गुजराती मुझे कहीं महाराष्ट्र में जाना हो तो मैं मराठी नहीं जानता हूँ और वो लोग गुजराती नहीं जानते, तो माध्यम भाषा हम हिंदी से ही व्यवहार करेंगे। पूरे भारत में किसी के हृदय तक जाना हो तो हिंदी के जरिए हम जा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम अगर अंग्रेजी में प्रस्तुत होता, अगर मराठी में प्रस्तुत होता, अगर कोई दूसरी गुजराती में प्रस्तुत होता, तो क्या पूरा भारत इस कार्यक्रम को इतना जो आवकार मिला है और इतना जो मजे से देखते हैं और उससे जो ज्ञान अर्जित करते हैं, क्या संभव होता? आज देखिए कपिल शर्मा का शो इतना प्रिय है, कोई लोग ऐसा नहीं कि कपिल शर्मा का शो, ये माध्यम भाषा हिंदी है और हिंदी के जरिए इतने ये जो सीरियलों को और चैनलों को लोकप्रियता मिली। और उस लोकप्रियता की जो भाषा है उस भाषा को हमें मजबूत करना है। और बाकी व्यापार क्षेत्र हैं और ये सब सारे क्षेत्र जो सर ने बात करी, तो मुझे लगता है कि हिंदी के प्रति हमारा एक है ना, वो हमारे हृदय की भाषा है, हमारी माँ है और माँ को हमें सतत हमारे सामने और हमारे समक्ष रखनी चाहिए।
બિલકુલ હિન્દી આપણી માતા છે, સાથે બધાને જોડતી એવી ભાષા છે. આપણે અલગ અલગ રાજ્યમાંથી કેમ ના આવતા હોઈએ, પરંતુ એક હિન્દી છે કે જે આપણને બધાને એક કરીને देशवासी बनावी रही है. प्रोफेसर अनेकांत, खास करके जैसे आपने पहले बताया कि हिंदी एक अंग्रेज़ी को आत्मसात कर लेती है. जो हिंदी प्रेमी है, जो बोलते हैं कि नहीं हिंदी ज़्यादा बोलनी चाहिए, उनका अंग्रेज़ी से विरोध बिल्कुल नहीं है, पर साथ साथ में वो ये भी कहते हैं कि हम अपनी अपनी जो राष्ट्रीय भाषा है उससे भूलें नहीं. आप इतने सारे विद्यार्थियों को पढ़ाते होंगे, उनके मन की बात को जानने का प्रयत्न करते होंगे. आज की जो पीढ़ी है शायद वो क्रांति ला सकती है, शायद वो आगा जो आज इसके बाद जो पीढ़ी आएगी उसमें हिंदी के लिए जो भावना है, जो प्रेम है, वो फिर से वैसा जगा सकती है जैसा आप लोगों को है. तो आज की जो पीढ़ी है वो क्या सोचती है? मैं मेरा उदाहरण दूँ तो मुझे हिंदी सुनने में बहुत अच्छी लगती है. बिल्कुल मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हूँ, पर फिर भी मुझे हिंदी सुनने में अच्छी लगती है, बोलने में भी उतनी ही ज़्यादा अच्छी लगती है. तो ऐसे कई सारे विद्यार्थी होंगे, ऐसे कई सारे ये जनरेशन के लोग होंगे जो हिंदी को बहुत ही पॉजिटिवली लेते होंगे. क्या कहेंगे आप उसके बारे में? नहीं, बिल्कुल सही बात है और मैं बड़ा आशान्वित हूँ हमारी यंग जनरेशन से. अभी वर्तमान में जो हमारी युवा पीढ़ी है वो हिंदी को महत्व देती है और हिंदी में बातचीत भी करते हैं, लेकिन उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो उसने उन्होंने उनकी हिंदी को तोड़ा है. उनकी गलती नहीं है. वो ना घर से हिंदी सीख पाए क्योंकि उनके पेरेंट्स भी, उनके माता पिता भी इंग्लिश बोल रहे हैं घर में और स्कूल में भी इंग्लिश बोली जा रही है, तो वो सीख नहीं पा रहे हैं उसको. वो सीखना चाहते हैं लेकिन सीख नहीं पा रहे. और जो सीख रहे हैं अगर वो कॉलेज में आकर सीखते हैं, स्कूलों में सीखते हैं, तो वो उसको महत्व दे रहे हैं. मैं एक निवेदन ये भी करना चाहता हूँ, आज हमारा जो फिल्मी जगत है वो हिंदी में सारी फिल्में कमाते हैं, वो लोग हिंदी में बोलते हैं, लेकिन जब वही आर्टिस्ट जब अपना इंटरव्यू देते हैं तो इंग्लिश में देने लग जाते हैं. वो हाँ, लेकिन वो हिंदी की कमा रहे हैं, हिंदी का खा रहे हैं, लेकिन हिंदी जब वो इंटरव्यू देते हैं तो हिंदी में नहीं बोलते. और दूसरी बात ये कि आप फिल्म इंडस्ट्री में भी आप देखिएगा कि जब किसी कैरेक्टर को वो अगर हिंदी बुलवाते हैं, शुद्ध हिंदी, तो उसको एक कॉमेडियन के रूप में रखते हैं कि मैंने कोई शुद्ध हिंदी बोल रहा है, वो हंसी मजाक का विषय बन गया. तो इसको मैं जानता हूँ कि ये हिंदी के प्रति सम्मान नहीं है. अगर कोई प्रोफेसर हिंदी में बोलता है, आप देखें अगर कोई कॉलेज का सीन है और कोई प्रोफेसर शुद्ध हिंदी बोल रहा है तो सारे लोग मजाक उड़ाते हैं. तो ये माने मैं मानता हूँ ये कॉमन सेंस इतना होना चाहिए हमारे इंडस्ट्री को भी कि हमारे देश की मातृभाषा, हम उसी को हम खा रहे हैं, उसी का कमा रहे हैं, तो कम से कम हम अपने सीन में उसको वैल्यू दें और उसको सम्मान दें. तो जो यंग जनरेशन है जो फिल्मों से बहुत ज्यादा प्रभावित रहती है, तो वो भी जब हिंदी कहीं सुनेंगे, बोलेंगे, देखेंगे तो उसको वो ऑनर देंगे कि हम लोग हिंदी वासी हैं या हिंदी भाषी हैं, हम हिंदुस्तान के हैं, हम हिंदी को महत्व देते हैं, तो वो उसको सम्मान देंगे. मैं मानता हूं अगर आप हिंदी नहीं भी बोल पा रहे लेकिन आप हिंदी को सम्मान देते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपके मन में उसके प्रति सम्मान है. और अगर आप उसके प्रति सम्मान भाव नहीं है और आप हिंदी बोल रहे हैं तब भी उसकी कीमत नहीं है, मैं ये मानता हूं. तो आप हिंदी के प्रति सम्मान को कायम करें और पूरा विश्व एक दिन इस चीज को मानेगा कि आज देखिए पंडित बनारसी दास जी थे, उन्होंने हिंदी में सबसे पहले आत्मकथा लिखी थी. पूरे विश्व में कहीं आत्मकथा उसके पहले मिलती नहीं. अर्ध कथानक उसका नाम है और वो सबसे पहली आत्मकथा है. तो आप देखिए हिंदी ने कितने योगदान दिए हैं. पहले कोई ऑटोबायोग्राफी लिखता नहीं था, लेकिन उसके बाद से वो परंपरा चल पड़ी, फिर लोग आत्मकथाएं भी लिखने लग गए, हिंदी गद्य भी लिखा जाने लगा. आज देखिए कितना अधिक विकास हो गया है. आप दिल्ली जैसे शहर में देखेंगे तो हिंदी का तो बहुत बोलबाला है यहाँ. तो किसी भी न्यूज चैनल में इंटरव्यू देने जाता है कोई एंकर या कुछ, अगर हिंदी बोलना नहीं जानता है तो उसको सिलेक्ट नहीं किया जाए, क्योंकि वो हिंदी और सिर्फ बोलना ही नहीं, बहुत अच्छा उच्चारण उसका होना चाहिए, बहुत अच्छा उसका अभ्यास होना चाहिए और अच्छी शब्दावली का प्रयोग करने वाला हो, बहुत तहजीब से बोलता, तब उसका सिलेक्शन होता है. तो आज प्रोफेशनली आपको हिंदी सीखना बहुत जरूरी. नहीं तो आप जिंदगी में जैसे पहले बोलते थे कि इंग्लिश नहीं जानेंगे तो आप पीछे हट जाएंगे, तो अब ये एक समय आने वाला है कि अगर आप हिंदी अच्छी नहीं जानते हैं तो आपके कैरियर में आपको अच्छी ग्रोथ नहीं मिल पाएगी, आप पीछे हट जाएंगे. तो निश्चित रूप से हिंदी का बहुत अच्छा भविष्य है और मैं मानता हूं आपने बहुत अच्छी पहल की है. मैं आपके चैनल का भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने हिंदी को मुख्य विषय बनाते हुए आज इस परिचर्चा का आयोजन किया है. तो हमारी युवा पीढ़ी जो इसको सुन रही है वो भी इस चीज को महसूस करेगी कि हमें हिंदी बोलने में हमेशा गर्व का अनुभव करना चाहिए.
બિલકુલ. દર્શક મિત્રો, ખાસ આજે વિશ્વ હિન્દી દિવસ પર ચર્ચા કરી છે. હિન્દી બોલવામાં શરમ નહીં, ગર્વ કરવું જોઈએ, કારણ કે આપણી રાષ્ટ્રીય ભાષા છે અને એક એવી ભાષા કે બધા જ રાજ્યના નાગરિકોને જોડે છે, ભારતવાસી બનાવે છે, આપણને એક ભારતનો નાગરિક બનાવે છે. હિન્દીનું જેટલું મહત્ત્વ રહ્યું છે આપણે હર હંમેશ તેને યાદ રાખવું જોઈએ. કેટલીય બીજી ભાષા આવી છે, આપણી માતૃભાષા તો ડેફિનેટલી પહેલાં હોય જ, સાથે સાથે અંગ્રેજી પણ જે લોકો બોલી રહ્યા છે. પરંતુ તમને જો અંગ્રેજી ના આવડે ને હિન્દી આવડે તો એમાં શરમ નહીં કરવાનું, ગર્વ કરવાનું, કારણ કે તમારી પોતાની તમારી રાષ્ટ્રની ભાષા છે. બિલકુલથી આપણી સાથે કાર્યક્રમમાં મહેમાનો જોડાયા હતા, પ્રોફેસર અનેકાંત અને ડૉક્ટર ઘેલજી. આ બંને અમારી સાથે કિંમતી સમય ફાળવીને કાર્યક્રમમાં જોડાયા. આપનો ખૂબ આભાર. દર્શક મિત્રો, હોટ ટોપિકની આજે સમાપ્ત કરીએ છીએ. ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી કશિશને આપશે રજા. નમસ્કાર.